हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 13 काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु भूगोल का 13 चैप्टर। ठीक है, इसमें जो है हम वेदर और जो क्लाइमेट के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, मौसम और जलवायु के विषय में। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए रहेगा जिनके सिलेबस में जो है वेदर एंड क्लाइमेट है। ठीक है, साथ में जो बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a discussion of most important chapter here, weather and climate. There is a most important chapter here. An important point also is the same, weather and climate. First point, weather and climate is the most important here. The first of all come to the weather. The weather is the most important here. The weather is the temperature, pressure, wind and humidity and the precipitations and interact with there is each other. You know that there is important here. Temperature, pressure, wind is humidity and precipitations is interact with each other. They influence their atmospheric condition like the direction and velocity of wind. Amount of insolations is a cloud cover and the amount of the precipitation, and these are known as the element of both weather and climate. The influence of this element is a differ from place to place. It is important here. Then there is the influence of atmospheric condition like the direction and the velocity of the wind, amount of the insolations, cloud cover and the amount of precipitation, and these are known as there is element of both weather and climate here. And time to time, the place to place and the time to time there is important here. It may be restricted to a small area and from a short duration of time. We very often to describe this influence in the name of the weather and a sunny, hot, warm, cold, fine, etc. depending upon their dominant element of weather at a place and at the point of time. Therefore, the weather is the atmospheric condition of a place for a short durations with respect to its one or more elements. Two places even a short distance apart maybe have a different kind of weather at one and the same time. It is important here. We very often describe this influence in the same. The name of their weather is a sunny, hot, warm, cold, fine. Depending upon their dominant element of weather at the place and at the point of the time, there is important here. And the important here, the weather is atmospheric condition of a place to short duration with respect to its one or more elements. Second point is also important here. Weather is a forecast. There is important here. Weather forecast. It is important to know by the some means that the comings is a weather is a advance. You may be a planning to go on a hike without is known that is a particular day may be rainy. Farmers, soldiers, servitors, and tourists, and many others are interesting to know there is a weather condition in advance for their own benefit. That is why the newspaper publish a weather report and the weather broadcast along with the map showing with the information. You know that there is important here. Farmers, soldiers, and the voters, tourists, and maybe others are interested on there is a weather condition in advance for their own benefit. And that why the newspaper published to weather report and weather broadcast along with their map showing its information.
Now better weather is a broadcast are available with the use of weather satellites. The weather conditions are televised is every day. When a cyclone, there is a dangerous weather is expected to warming an issue over to the radio, television, and newspaper, so that is the people can be prepared to save themselves. And there is a property from it is a housed. This is important here. The weather offices collect the data on temperature, wind, cloud, cover, is rainfall, and the other atmospheric phenomenon. Through it is a numerous is observation center, and these centers are scattered all over the country. Similar information is also received from to the ships, alliance, and it is a high seas. The analysis of the data thus is a collective help in the forecasting weather conditions for the next 48 hours or even for a week. The significance of a weather information of supply to through a map and it is a forecast. It's a better is utilized in a country like the UK and where is a weather change is very rapidly. There is the most important data here. The next year season. The season is the most important here. You know that a year is divided into the season depending upon the variation is atmospheric condition, and there are specific period in a year which have a similar weather condition. Season is the period of the years is characterized by a particular set of weather condition resulting from their inclination of the earth as an axis and their revolution of the earth around the sun. The same cycle of the season is repeated is a year after year. The fourth season, each of the 3 months is duration has been to the recognized in the temperate region. And there is spring, summer, autumn and winter. There is the most important season here. In our countries, we have 3 distinctive seasons which are summer, winter and rainy. The India is a meteorological department has recognized 4 main seasons. They are is called weather season, December to February, and hot weather season, March to May, and advancing monsoon season or rainy season is a June to September, and the starting is a monsoon season is October to November. Traditionally, there are 6 seasons is a North India. There is a Basant Ritu, Chaitra, Vaishakh or March to April. A Gransham Ritus is a Santyas, Arsara and the Major June. Brasha Ritu, there is a Sharavans is a Bhadrapad, is a July to the August. And Sharad Ritu is a Ashwan, is a Kartika and there is September to October. And Hemant Ritu is the Maghar is Srish post are the November to December. And Shri Sar Ritu, there is a Magh, Fagun or a Jan to the Feb. There is the most important here Ritus on here India of the season of 6 types here. The rays of the sun are more or less direct on the equator throughout the year. In the equatorial region is experience there is the same temperatures all the years around. Therefore, a season are insignificant one are near their equator. Near the coastal and the oceanic influence of reduce the seasonal variation. In the polar region, there are only 2 seasons: is a long winter and short summer. The next word is a climate. Climate is also important here. The average weather condition is prevalent is from one season to another in the course of a year. Over a large area is known as a climate. There is an average of this weather is a condition is calculated from the data collected for a several year, about a 35 year for a larger area. Rajasthan, for example, experienced hot and various climate, and Kerala has a tropical rain climate, and Greenland has a cold desert climate, and the climate of the Central Asia is a temperate is a continentals. Climate of region is considered more or less permanent. The here is an important point arrive there. The weather is the atmospheric condition of any place for a short period of time with respect to its one or more elements such as a temperature, pressure, wind, humidity and precipitation, sunshine, cloud over and etc. There is an important here. The period of the years which are characterized by the particular set of the weather condition are mainly
caused by there is an inclination of the earth as a axis and the revolution of the earth around the sun are known as the season. And the average the weather condition of a large area for the past several years is known as the climate, precising more and less permanent. The next year, the difference between the weather and climate can be tabulated under the first year weather and second year's climate. The weather is the study of the atmospheric condition for the short duration of a limited area. And climate is here. Climate is the study of the average weather condition observed over a long period of time for a longer area. The second year, weather is influenced by the any one of its the predominant is the element is the temperature or humidity, and the climate is there is a collective effect. All it is the elements. The third point is also important here. The weather change very often. It is a more or less is a permanent. Is the third point is the climate. It is experienced over to small area of the country. But the fourth year is climate. It is experienced over to large area of the continent. The fifth year of place can be experienced different types of weather condition in a year. But the next point is the fifth year is climate. A place can be experienced only one types of climate. हमारा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है मौसम और जलवायु, क्योंकि चैप्टर भी हमारा यही है मौसम और जलवायु। उसके अंतर्गत जो है मौसम जलवायु के विषय में जो है विस्तार पूर्वक हम जानेंगे कि आखिर मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु क्या होती है। तो ये जानना आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा। आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, तभी जान पाइएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है। ठीक है, तो ये बात आपसे छुपा नहीं है, आपको ये बात समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है मौसम। देखिए, मौसम क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि मौसम के अंतर्गत जो है तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हो सकते हैं। ठीक है, तो तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हैं, और ये एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते ही रहते हैं। यानी एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती ही रहती है। और ये तत्व पवन की दिशा एवं जो है गति या सूर्यताप की मात्रा और मेघाच्छादता तथा वाष्ण की मात्रा आदि जो है वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। इन वायुमंडलीय तत्वों को ही मौसम और जलवायु का अवयव कहा जा सकता है। यानी बहुत में इम्पोर्टेंट बात आया है यहाँ पर कि जो है गति, सूर्यताप की मेघाच्छादता और वर्षण की मात्रा वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है, और इन वायुमंडलीय तत्वों को ही मौसम और जलवायु का अवयव कहा जा सकता है। इन अवयवों की भिन्न भिन्न स्थानों और समय पर जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। यानी इन अवयवों का जो है विभिन्न विभिन्न स्थानों और समय पर जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है, और यह प्रभाव एक सीमित क्षेत्र या छोटी अवधि के लिए हो सकता है। हम प्राय इस प्रभाव को मौसम के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे धूप वाला गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान आदि का मौसम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धूप वाला गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान आदि का ये सब मौसम हो सकते हैं। इनमें से मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करती है। यानी देखा जाए तो मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करेगा ही करेगा, जो किसी स्थान और समय के विशेष में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। अंततः किसी स्थान तक छोटी अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान का मौसम कहलाता है। तो आप मौसम समझ गए होंगे क्या होता है। किसी स्थान का छोटा अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान का मौसम कहलाता है। और एक ही समय में निकट स्थित दो स्थानों पर अलग अलग मौसम हो सकता है। यानी एक ही समय में निकट स्थित दो स्थानों में अलग अलग मौसम होना स्वाभाविक है। आपने देखा भी होगा, इसको ऑब्जर्व भी किया होगा अपने डेली टू लाइफ में, कि एक क्षेत्र में बारिश हो रहा होता है और एक क्षेत्र में धूप निकला हुआ होता है। तो हो गया ना दो कंडीशन, और ये कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसपास ही ऐसा कंडीशन देखने को मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मौसम का पूर्व अनुमान। तो सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि मौसम का पूर्व अनुमान। देखिए, मौसम का पूर्व अनुमान के कारण आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। कहते हैं आज
समय रहते ही हर चीज़ के बचाव के लिए जो है मौसम का पूर्वानुमान के कारण ही जो है इंसान सशक्त हो जाता है और उन जो दुर्घटनाएं होने वाले होते हैं, जो प्रॉब्लम आने वाले होते हैं, उससे पहले ही वो जो है अपना पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये सब किस कारण हुआ? मौसम का पूर्व अनुमान के कारण ही हुआ। तो देखिए, मौसम का पूर्व अनुमान के अंतर्गत क्या है, कहते हैं आने वाले मौसम की किसी विधि द्वारा पहले से जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है। उदाहरण के लिए आप किसी दिन लंबी यात्रा जो है पैदल यात्रा कर जाने की योजना बनाते हो, परंतु आपको यह मालूम नहीं है कि उस दिन वर्षा होगी अथवा नहीं। तो आपको पहले से ज्ञात हो जाए कि उस दिन वर्षा नहीं होगी तो आप निश्चय होकर अपनी योजना को जो है कार्य रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार किसान हो, नाविक हो, वायुयान चालक हो, पर्यटक हो और अन्य बहुत से लोग अपने हित के लिए पहले से ही जानने की रुचि लेते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात यहाँ पर रखता है। इसलिए समाचार पत्र में जो है मौसम का विवरण, मौसम का पूर्वानुमान और इस जानकारी को दर्शाने वाला मानचित्र जो है योजना रोजाना छापे जाते हैं। मौसम उपग्रहों की मदद से अब मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी अधिक विश्वसनीय मिल रही है। दूरदर्शन पर मौसम की दशाओं की जानकारी रोज दी जा रही है और जब कभी चक्रवात या खतरनाक मौसम के आने की संभावना होती है तो रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्रों द्वारा चेतावनी दे दी जाती है, जिससे लोग मौसम के खतरों से अपनी जान और माल की रक्षा कर लेते हैं। तो मौसम का पूर्व अनुमान होना कई मायने बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे जो है हम कई खतरों से भी बच सकते हैं। मौसम कार्यालय सारे देश में फैली अपनी अनेक जो है वेधशालाओं द्वारा तापमान, पवन, मेघाच्छन्न, वर्षा और अन्य वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और इसी प्रकार की जानकारी गहरे समुद्र में चलने वाली जल योजनाओं से भी प्राप्त होती है और इन आंकड़ों का विश्लेषण एवं अध्ययन द्वारा अगले 48 घंटे या एक सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी भी दी जाती है। और यह जानकारी यूनाइटेड किंगडम जैसे देश जहां मौसम परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है और इससे जो है जान माल की रक्षा भी किया जा सकता है। अगर हमें इसकी जानकारी न रहे तो हम बहुत ही मुसीबत में फंस सकते हैं। उसके पश्चात है ऋतु। आप जानते हैं कि वायुमंडल दशाओं में विभिन्नताओं के अनुसार वर्ष को कई ऋतुओं में बांटा जा सकता है, यानी एक वर्ष के कई ऋतुओं में बांटा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर भारत में देखा जाए तो इसमें 6 ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। ऐसा भारत में ही 6 ऋतुएं पाई जाती है, बाकी देशों में ऐसा नहीं है, तभी तो भारत को विभिन्नताओं वाला देश कहा जाता है। ऋतु वर्ष की वह विशिष्ट अवधि है जिसमें मौसम की दशाएं लगभग सामान्य रहती है। ऋतु को बदलने के साथ मौसम दशाएं भी बदल जाती है। अंततः ऋतु वर्ष की वह अवधि लंबी अवधि है जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती है और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रति वर्ष ऋतुओं का एक सामान्य चक्र दोहराया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है, जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती है और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रति वर्ष ऋतुओं का एक सामान्य चक्र दोहराया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 3 माह की अवधि की और 4 ऋतु मानी गई है। यानी देखा जाए शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 3 माह की अवधि को जो है 4 ऋतुओं में बांटा गया है। इसके नाम है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शीत ऋतु। यानी 4 मौसम में इसको बदला गया है। कहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। हमारे देश में 3 प्रमुख ऋतु होते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 4 प्रमुख ऋतु मानी गई है। इनके नाम है शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक और आगे बढ़ते मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु कह सकते हो जून से सितंबर तक, और पीछे हटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। लेकिन उत्तर भारत में परंपरागत 6 ऋतु मानी जाती है। देखिए भारत कितना विभिन्नताओं वाला देश है कि उत्तर भारत में परंपरागत 6 ऋतु मानी जाती है।
इसके नाम है बसंत ऋतु, जो कि चैत बैसाख या मार्च अप्रैल के दिनों माने जाते हैं। उसके पश्चात है ग्रीष्म ऋतु, जो ज्येष्ठ आषाढ़ या मई जून से माने जाते हैं। उसके पश्चात आता है वर्षा ऋतु, जो श्रावण और भाद्रपद तथा जुलाई और अगस्त के अंतर्गत आता है। और शरद ऋतु जो है आश्विन कार्तिक या सितंबर अक्टूबर तक आता है। उसके बाद हेमंत ऋतु जो है माघ शीश पौष पूष तक आता है, जो कि नवंबर दिसंबर के मध्य माना गया है। और शिशिर ऋतु जो है माघ फागुन या जनवरी फरवरी के अंतर्गत आता है। तो ये 6 ऋतु जो है उत्तर भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विषुवत वृत्त के ऊपर सूर्य किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। अंततः विषुवतीय प्रदेशों में तापमान सारे वर्ष एक सामान्य ही रहता है, और इस कारण विषुवतीय प्रदेशों में कोई ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में समुद्र का प्रभाव ऋतुओं की विभिन्नता को कम कर देती है। ध्रुवीय प्रदेशों में केवल 2 ऋतु होती है, लंबी शीत ऋतु और छोटी शीत ऋतु, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी शरद ऋतु हो गया और जो है ग्रीष्म ऋतु हो गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जलवायु। देखिए, जलवायु किसी भी प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसी पर जो है पूरे कार्य प्रणाली आश्रित होती है। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में वर्षा की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसम दशाओं को उच्च क्षेत्रीय जलवायु कहते हैं। तो आप जलवायु समझ गए होंगे। किसी विस्तृत क्षेत्र में वर्षा की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसम दशाओं को उच्च क्षेत्रीय जलवायु कहते हैं। औसत मौसम दशाओं की जानकारी एक बड़े क्षेत्र की अनेक वर्षा लगभग 35 वर्ष के एकत्र किए गए आंकड़ों की गणना के आधार पर की जा सकती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। केरल उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु है, और ग्रीनलैंड की शीत मरुस्थलीय जलवायु है। और मध्य एशिया की जलवायु शीतोष्ण महाद्वीपीय है। किसी प्रदेश की जलवायु अपेक्षाकृत स्थायी ही होती है। यदि हम पॉइंट की बात करें तो कहते हैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि पूरा सारांश के रूप में हो सकता है। किसी स्थान के तापमान, वायु दाब, पवन और आर्द्रता, वर्षण, धूप और मेघाच्छंद आदि के संदर्भ में थोड़े समय की वायुमंडलीय दशा को उस स्थान का मौसम कहलाता है। वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम दशाएं लगभग सामान्य होती है, और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है, को ही ऋतु कहा जाता है। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं जो अपेक्षाकृत स्थायी होती है, को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जलवायु समझ गए होंगे किसे कहते हैं। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। अब जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौसम और जलवायु के अंतर को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यानी मौसम और जलवायु के अंतर को जो है निम्नलिखित तरीके से आप समझ सकते हो। तो पहला जो है मौसम, दूसरा है जलवायु। हमारे समक्ष मौसम और जलवायु है। देखिए, मौसम में किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि प्राय 1 दिन या 1 सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। यानी मौसम में किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि यानी छोटी अवधि 1 दिन या 1 सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के अंतर्गत जो होती है, जलवायु में बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधी दशाओं को औसत का अध्ययन किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें तो मौसम वायुमंडलीय तत्व जैसे तापमान अथवा आर्द्रता में किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। यानी मौसम वायुमंडलीय तत्व जैसे तापमान अथवा आर्द्रता में किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। अगर जलवायु की बात करें यहाँ पर, तो जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव को देन है। यानी जलवायु जो है वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह साफ करता है कि मौसम अक्सर बदलता रहता है। तो मौसम तो जो है अक्सर बदलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो कहते हैं ये लगभग अस्थायी होता है। जलवायु जो होती है अस्थायी होता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जा सकता है। यानी इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर जलवायु को प्रभाव को किसी महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है दोनों।
आखिरी पॉइंट की बात करें तो किसी स्थान पर वर्षा में विभिन्न प्रकार के मौसम का अनुभव किया जा सकता है। यानी किसी स्थान पर वर्षा में विभिन्न प्रकार के मौसम का अनुभव किया जा सकता है, जबकि जलवायु में किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु हो सकती है। किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, जिसके बारे में हमने जाना, समझा और इसके डिफरेंस को भी भली भांति जानने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से था। आपको जो इसका डिफरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको नोट डाउन करना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, तभी जो है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो है इनको, जिसको जलवायु वाला जो चैप्टर है अगर है उनमें, तो ये काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो उनके साथ शेयर कीजिए, चाहे वो किसी भी क्लास के हों। अगर उनमें टॉपिक ये है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा उनके लिए टॉपिक। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ में कुछ गलतियाँ, आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करने से बनाने वाले का जो है मनोबल बढ़ता है और उसके जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रेरणा भी मिलता है। तो इसलिए जो है आप सब्सक्राइब करके जो है चैनल को सेव कीजिए अपने मोबाइल में, जिससे आने वाला समय में आपको जो है 9वीं से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है, तो वो आप उससे लाभान्वित हो सकोगे।